see Anil Deshmukh. And I think I told them we'll be able to brief you tomorrow, that is today. It's correct, no? Yes, sir. Yes. Now, I tried to collect the information about exactly the allegation which was made by former CP against Home Ministers. And whatever the period which he said, what exactly happened in that period, that also I tried to collect information. If you see the former commissioner's letter, he mentioned in mid-February he was briefed by certain officers that they got such and such instruction from Home Minister. Correct? पेट्रोल बॉम्ब के सामने आने के बाद से लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी जारी रहा। इस बीच आप लाइव सुन पा रहे हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इस प्रेस वार्ता के Now I got a documentary evidence from 5th February to 15th February. Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. And I got the hospital from Nagpur, Alexis, Alexis, Alexis is the name of hospital, and this hospital has given certificate later. This is to certify that Mr. Anil Deshmukh, age 70 years, was admitted in the Alexis multi-specialist hospital in Nagpur under my care from 5th February. Certificate later. This is to certify that Mr. Anil Deshmukh, age 70 years, was admitted in the Alexis multi-specialist hospital in Nagpur under my care from 5th February to 15th February for my COVID-19 illness. तो शरद पवार ने कहा इस प्रेस वार्ता में कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उन तमाम जानकारियों को जुटाने की जो परमवीर ने जिस पीरियड में सर्व किया था, जिनका जिक्र किया गया है। इस बीच दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष की, एनसीपी प्रमुख की ये प्रेस वार्ता हो रही है और परमवीर की चिट्ठी के बाद से जो हलचल तेज होगी उसके बाद से लगातार अनिल देशमुख के इस बीच इस्तीफे की मांग जो है वो भी खुलकर सामने आ रही है। राज्यसभा में भी इस बात का जिक्र किया गया और इस बीच ये लाइव आप सुन पा रहे हैं शरद पवार एनसीपी प्रमुख को। And advice from 15th February to 27th February for house. कोरोना की वजह से उस दौरान देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। 5 जनवरी से 16 फरवरी इस वक्त का जिक्र किया गया। उस दरमियान देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। और फरवरी में जो वाजे और देशमुख की बातचीत हुई थी वो गलत। इस प्रेस वार्ता में इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया गया शरद पवार द्वारा। Because former CP's letter, he suggested regarding collection of money. 15 तारीख को डिस्चार्ज किया गया था देशमुख को और उसके बाद से वो 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में रहे हैं। He was at his official residence and some instructions were given. जिस वक्त का इस पूरे घटनाक्रम के दौरान परमवीर की चिट्ठी में जिक्र रहा है, शरद पवार ने विस्तृत तरीके से तारीखों के हिसाब से बताया कि उस दौरान अनिल देशमुख जो थे वो कोविड से ग्रसित थे, अस्पताल में भर्ती थे 5 से 15 फरवरी के बीच में नागपुर में और उसके बाद जो है उनको 15 तारीख को फरवरी के महीने में डिस्चार्ज किया जाता है। होम क्वारंटीन में 27 फरवरी तक शरद पवार ने इस प्रेस वार्ता में जिक्र किया कि वो होम क्वारंटीन रहे हैं। Former CP's version.
Another issue which I just think this is not anybody raised is that March 3rd week or 2nd week, he mentioned in his letter he had briefed CM. Suppose in mid-February, CP got this type of information. So while he was waiting up to 2nd week of March for whole month, this is an important issue. It was his duty, at least he should say something in writing. At least it was his duty to फरवरी के महीने में चूंकि अस्पताल में भर्ती थे, लिहाजा वाजे देशमुख की मुलाकात नहीं हुई है। उस दौरान 15 से 27 फरवरी तक आइसोलेशन में रहे देशमुख और उस वक्त नागपुर में भर्ती थे। दरअसल उन सारे दावों पर बचाव की मुद्रा में हम कह सकते हैं शरद पवार नजर आ रहे हैं। जिन तारीखों का, जिस टाइम फ्रेम का जिक्र किया गया, उन तारीखों के हिसाब से फरवरी की उन तारीखों का जिक्र करते 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे अनिल देशमुख। कोविड से ग्रसित थे, क्वारंटीन वो रहे थे 27 फरवरी तक, होम क्वारंटीन में थे 27 तारीख तक। But Rivero has taken public stand. He is not going to take any responsibility, so that issue is not there. Now for me, important issue is whatever this conversation, allegation, everything. और मार्च के दूसरे सप्ताह में कहा गया कि परमबीर को जानकारी थी, लेकिन क्यों इतना पूरा वक्त लगा, ये पूरा वक्त क्यों आखिरकार बाय लिया गया इन तमाम जानकारियों को सामने लाने में? What was the main case? Main case was certain items were kept in particular vehicle, somewhat near to house of Sri Ambani. Then, of course, police must have started investigating who has kept this vehicle, who owns this vehicle, and it looks like that they come to conclusion, or at least they got the information, may not be conclusion, but information, this particular jeep was in the custody of one deceased Hiren. And one fine morning we read that Hiren was assassinated. शरद पवार ने इस बात का भी जिक्र किया कि कल ही की बात है, कल भी प्रेस वार्ता शरद पवार ने दिल्ली में की थी, इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया गया था और ये सुझाव दिया गया है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करे। Is it correct that this was with him for many months? Is it correct that his jeep was taken from him by some police officer? And one fine morning we read, Hiren is no more. Now, ATS Bombay has yesterday or today announced they have arrested 2 persons in connection with assassination of Hiren. So I think एक तो बात साफ हो रही है कि हिरेन की हत्या किसने की। हिरेन की हत्या करने वाले पुलिस को, एटीएस को जो लगते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अभी बात आएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि why he has done this, these 2 gentlemen has done this, whether somebody has told him. That is in investigation process.
facts will come today, tomorrow, day after tomorrow. Can't say. तो शरद पवार कह रहे हैं कि वो प्रमाण दिखाए गए, But I am happy उस about one thing. टाइम फ्रेम का जिक्र किया गया जिस दौरान जिसकी बात कर रहे थे परमबीर, और ये बताने के लिए काफी हैं ये प्रमाण, इस बात को पूरी तरह से तस्दीक करते हैं, साफ करते हैं कि हिरेन का जो मर्डर है वो किसने किया, उनकी मौत के पीछे दरअसल जिम्मेदार कौन है, Then the G for the custody of so and so. और जांच में ये पूरी तरह साफ होगा कि क्यों और किस लिए और किन वजहों से ऐसा किया गया है। He was the owner of on his possession. तो परमबीर की चिट्ठी पर And जो चौतरफा सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र में, परमबीर की चिट्ठी के बाद से हलचल तेज हो गई है। as I said, और इस बीच कल भी प्रेस वार्ता दिल्ली में शरद पवार की रही, एनसीपी प्रमुख की आज भी ये प्रेस वार्ता लाइव दिल्ली से आप सुन पा रहे हैं। जो दावे, जो तारीखों का जिक्र किया गया उस चिट्ठी में, उस पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए So just to divert this entire, शरद पवार ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। why some people were पर्चा दिखाया देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने का, फरवरी के महीने में देशमुख अस्पताल में भर्ती रहे थे, प्रमाण के आधार पर उस पर्चे को दिखाया जाता है इस प्रेस वार्ता के जरिए। 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती रहे, नागपुर में रहे वो। is there any reason उन तारीखों का जिक्र जब वो होम आइसोलेशन में थे। conviction was given, any allegation, just vague allegation has been made, and I honestly तो परमबीर सिंह ने जिन दावों का जिक्र किया उसके हिसाब से तमाम जानकारियों को जुटाते हुए और अस्पताल के उस पर्चे के साथ इस वक्त आप शरद पवार को लाइव प्रेस वार्ता में सुन पा रहे हैं। उन सारे दावों, उन तारीखों, उस टाइम फ्रेम पर कब कब क्या क्या हुआ ये दर्शाया जा रहा है और ये पर्चा भी दिखाया जाता है शरद पवार द्वारा। now you can ask if you want it. Yeah, in fact, when we got all this information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same period. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the whole government record also said that entire 3 weeks he was not in Bombay. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation question doesn't arise. सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार, सदन में हंगामा हो रहा है, तो क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. परमबीर सिंग यांच्यावर पण दबाव टाकण्यात येत आहे का? अशा पद्धतीने पत्र लीक करून महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना अडचणी टाकणं, सरकारला अडचणी टाकणं हे केलं जाते का? राजकीय षडयंत्र वाटते? इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्या एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। तुम्ही अर्ध सत्य सांगत आहात, तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही।
इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केलाय की ह्या आधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले ते आपण लपवत आहे. ते तुमच्यावरच आरोप केलाय. मुझे त्याच्यात म्हणजे माझं भाग्य है कि उन्होंने मैं इसमें था ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाँ सत्य है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी। आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। सर अनिल देशमुख अब इस्तीफा नहीं देंगे सर, ये क्लियर है। सर शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो हैं वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीपी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कोई बातचीत हुई है? नहीं सीएम साहब अब तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये कुछ पार्टी में थे या कोई है, ये मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपका कोई रिएक्शन नहीं है, एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है? क्योंकि आज जो परमवीर सिंह के issue। भाई मैंने कभी देखा ना, मैं उनको कई सालों से देखता था, इनके बारे में कुछ बातें इधर उधर की सुनने के लिए आती थी, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। पवार सर जिस दौरान आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और अब मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे, इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री हैं, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार चल रही है, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है? मैंने कल ही उनसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी मैंने तक सुनिए एक बार पूरी होने दो ना। मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आएगी, आई भी हो सकती है इससे पहले, वो मुझे मालूम नहीं। पवार सर देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं है। एलिगेशन का जो समय है वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सेप्ट करना ठीक नहीं। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक ये जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे कोविड बाधाओं में, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। नहीं जो बात जांच, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था, अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर्स ऐसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है, मगर डिमांड को सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। पवार सर आपकी पार्टी गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करता येईल? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा। नाही पॉईंट आता चौकशीचा इश्यू कुठं आला की जे ॲलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसतंय आता। सीरियस एलिगेशन भी आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद का कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उस पर पहला केस देखा जाए जो एक्सप्लोजिव मिले थे उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कमलनाथ आपल्याला काल भेटले, काँग्रेस बरोबर आपली चर्चा कोण भेटले? कमलनाथ काल आलेले आपल्याला भेटायला। कमलनाथ काँग्रेसचे नेते नाही ते दुसऱ्या कामासाठी ते असा काही संबंध नाही। काँग्रेसची आपल्यावर चर्चा नाही झाली. कमलनाथची या प्रश्नावर चर्चा सुद्धा झाली नाही, त्यांचं कारण नाही। मध्य प्रदेशमधल्या काही प्रश्नाच्यासाठी ते माझ्याकडे आले काँग्रेसची चर्चा नाही, कोणाची चर्चा नाही झाली। पवार सर हम पूछ लें,
पवार सर परमवीर सिंग यांच्या पत्राचा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तरीही अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना सचिन वाझे आणि इतरही पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्या जिलेटिनच्या कारमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे, याची नैतिक जबाबदारी अनिल देशमुखांनी स्वीकारावी असं नाही वाटत का? त्यांचा पोलीस खात्यावरती वचन नाही असं माझ्या मते याची जबाबदारी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बघतो त्याची असते. पवार सर आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की अनिल परब ज्या प्रकारे ठीक आहे. पवार सर आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे जिम्मेदारी सौंपी. आपके तमाम जो नेता, कल जयंत पाटिल ने भी कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, तो एनसीपी के अंदर दो स्टैंड क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, आज मैं वही कह रहा हूँ. कल क्योंकि वो मुंबई से, अरे सुनिए, कल वो कह देते, मैं आज कल नहीं कहता था, आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि जयंत पाटिल मुंबई से आए थे, उनके पास ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, यह वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, और इसलिए मैंने कल, ये सीरियस इशू है और इसलिए इस बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था. मैं आज आई एम एब्सोल्युटली clear after getting information of Nagpur hospital, allegation which is made against Mr. Deshmukh is not correct. तो इस्तीफा नहीं होगा सर. इसमें भुजबल थे, आबादी थे, सब लोग थे. 4 मार्च का मीटिंग सेंटर पे क्या? लेटर है हाँ. जो परमवीर सिंह ने लिखा है, उसमें 4 मार्च को मीटिंग हुई थी और वो 27 तारीख को He has quoted a meeting on 4th of March, and then he says, He mentioned in sir, there are two references. mid-February. I will read that out for you from the letter. He mentioned mid-February, same day, concerned officers briefed him that he has said from mid-February till ये 16 मार्च तक वो चुप क्यों बैठे थे? सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी. ये इन्होंने लेटर पे इतनी सारी बातें लिखी. उन्होंने ये भी लिखा है that I went to the chief minister on a certain evening at Varsha. I briefed him about what was going on. He says he briefed you as well. I want to ask you, Pawar sir, that if he came and he spoke to you, maybe you may not want to share what he told you, but did you make the effort to call the Home Minister, check with him what was going on? And you have agreed to the fact that he came and met you, sir. What did you do after that, Pawar sir? Exactly. He mentioned same thing to me also. I don't hide. Okay. Then CP has briefed me also. He made allegation also, and definitely whatever the time schedule which he has given and factual information as on today, there is a vast difference, and that's why question doesn't arise to take anything about Mr. Deshmukh. Sir, that question has been asked about the political purpose. क्या आपको लगता है ये पूरा मसला जो है सियासी साजिश का है? क्योंकि आपने कहा कि बार-बार मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है. महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार एक तरह से चुनौती है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बड़ी. तो क्या कहीं मैंने कल कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट किए या कुछ डिमांड की. अपोजिशन का नेता का ये काम है, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ. ये कल मैंने कहा था, आज भी मेरा कहना वही है. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ते प्रामुख्याने सतत वारंवार करतात. आज प्रकाश आंबेडकर सर राजभवनावर जाऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. साधारणतः ज्यांच्या पाठीशी लोक आहेत, संसदेत लोक आहेत, विधानसभेत लोक आहेत, अशांच्या मताचा साधारणतः आम्ही कॉग्निशन घेतो. पवार साहब जो अभी सवाल पूछ रही थी मौसमी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के एलिगेशंस लगा के, सर ये परमवीर किसके बेहस पे कर रहे हैं? मैं जानता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं. That's why I will not make any wild allegation unless I got something. पवार साहब, सर आपने वो जो हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बताई देशमुख साहब के, लेकिन 15 तारीख को उन्हें फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल की तरफ से मिल गया था. तो क्या इस बात के लिए भी आप श्योर हैं कि 16 तारीख के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है या आपकी बात हुई है? कि मुलाकात हुई क्या नहीं ये मैं जानता नहीं हूँ, मगर जो कुछ एलिगेशन थे उसका समय और फैक्चुअल स्थिति में फ़र्क है. और दूसरी बात यह है कि मेन इशू दूसरा है. मेन इशू ये नहीं है. मेन इशू अंबानी के मकान के सामने कुछ बातें रखी गई, इसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन लोग थे, ये किसकी साजिश थी, ये मेन इशू है. ये मेन इशू में
ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं कि जिसकी डिटेल इंक्वायरी होने की आवश्यकता है। आप लोगों ने, आप यानी टेलीविज़न ने ये दिखाई कि वो जीप से कौन उतरता है, कौन जाता है, कौन बैठता है, किसने लाई, जीप से जाने के बाद कौन से गाड़ी से गए, वो इनोवा किसकी थी, ये सब बातें आप लोगों ने दिखाई। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये सब देखने के बाद डेफिनेटली मेन इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। शायद जो जिनको पसंद नहीं वो लोग डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश करें, इस तरह की आशंका पैदा हो सकती है। आपका कहना है सर, परमवीर सिंह की तरफ ये पूरी जांच जो है परमवीर सिंह की तरफ जा रही थी, इसलिए परमवीर सिंह ने ये किया, आपका कहना ऐसा है? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है किसी इंडिविजुअल। DGP rank officer has leveled allegation against the Home Minister. Don't you think that it should be proved properly? At least till the investigation is on, sir, Isn't should it? be stepping down. Don't you think that it should be Which proved? DCP? Sir, DGP rank DG level. officer. He's talking about Paramveer Singh, sir. DG level No, officer. no, The that, senior official has leveled allegation. that basically efforts I said is to divert main serious case, and I don't want that case has to be diluted. Okay, Pawar sir, I'll sit at 2. पवार सर लंबा हो जाएगा जरा। Paramveer कर लूंगी। reacted to this saying, I wrote the letter because I was hurt. I have not met any. Basically, I don't know about what he said, but what he said because I told that he met me. Mr. Pawar, I have not said about others. I have not said whether he met anybody in Delhi or anything. पवार सर अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस Speaking, huh? अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा किया वीडियो है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को। एक सेकंड, ये अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ठीक है सर। ना? तो आप सर कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। ये मेरे पास अंडर होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास हॉस्पिटल का सर आप सर्टिफिकेट। ये अनिल खुद की अनिल देशमुख की खुद की खींच के है, कौन सी दिन के है, किसको मालूम? सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्विटर है। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे पास पवार सर, do you want to see it? I'll show it to you. This is Anil 15 Deshmukh's फरवरी का Twitter page. सर्टिफिकेट है। Sir, this is Anil Deshmukh's नहीं, Twitter ठीक है, page if you want to see. I am doing this. That's fine, sir. We are just showing व्हिडिओ it to you. कॉन्फरन्सिंगची प्रेस कॉल होती. अच्छा, I was told this is a video conferencing face statement. What statement? ये देखो घर पे खड़े ये बैठे हुए हैं। बैठेंगे ना वीसी में आदमी घर पे ही बैठता है। क्यों लग रहा है? सर माइक आईडी सारी माइक आईडीज लग रही है। ये VC कैसे होता है? कैसी बातें आप कर रहे हैं? वो कहते ये सारी माइक आईडीज है। ये VC की बात है, जो बताया आपके सामने ही बताया, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। पवार साहब, ये और तो इम्पोर्टेंट गोस ये नहीं है। जी। इम्पोर्टेंट गोस ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो 2, इसके हत्या को कौन जिम्मेदार है वो 3। ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इतना मुझे कहना आई है ऑलरेडी रिफराइड, इनफ इज इनफ। सर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बाला साहब फराद और अशोक चौहान। उन्होंने कहा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन इस्तीफा भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपकी सहयोगी दल का ये बयान आया है कि महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं ये पार्टी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझसे बात नहीं की। जहाँ तक मुझसे बात हुई तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने कमेंट करना ठीक है,
और किसी ने कुछ किया होगा तो इस पर मैं कमेंट नहीं करना। और साहब ऐसा भी कुछ है कि एनसीपी में कुछ लोग चाहते हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दें, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। शिवसेनेचा काही दबाव आहे का? पवार साहेब, शिवसेनेचा काही दबाव आहे का अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी? शिवसेनेचा काही दबाव आहे का अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी? कारण की संजय राठोड यांचा एकीकडे राजीनामा घेतला जातोय, दुसरीकडे गृहमंत्र्यांवर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का घेतला जाऊ नये अशी देखील त्यांची ऐसा क्या आरोप? nobody has made any pressure or discuss from Shivsena side with me. Whatever documents you have, do you think that Anil Deshmukh kept you in the dark giving these documents while he is doing a press conference on 15th February with lots of mics, like we might have, like journalists might have come, na sir? हाँ, होता है ना। हम मेरे पास कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहते और पार्टी के नेता होते। मैं मुंबई से बात करता हूँ, एक इलाहाबाद से बात करता है, एक लखनऊ से बात करता है। ये सिस्टम आजकल है। आज आप देखिए, हमेशा आजकल हम लोग आप लोगों को बुलाते नहीं है। सर वो बातचीत ऐसे है सर, पवार सर तब तो परमवीर से भी मिल सकते थे, सचिन वाजे से भी मिल सकते थे। He could have met the case people सामने माइक रखी हुई है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर। को जो परमवीर जी कह रहे हैं सही भी हो सकता है ना सर जी, मिड फेब में मुलाकात देंगे क्या? अनिल देशमुख म्हणले मी हॉस्पिटलमधून घरी जाताना हे सगळे उभे होते, मी 2 मिनिटं थांबून त्यांच्याशी बोललो। थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर नहीं है। मुझे टिकट मालूम नहीं है, मैं कैसे क्लियर करूँगा? जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिमिटेड है वहाँ तक की बात करूँगा। नहीं, नो क्वेश्चन, इनफ। I have replied. Referring to the letter, hence I want to point something out from the letter, sir. जो अघाड़ी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्या क्लीन चिट देने के लिए जल्दबाजी कर रहा है? Repeat your question. आरोप ये लग रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? किसने जल्दबाजी की? सर यू आर सेइंग कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, ऐसी कोई खास जरूरत लगती नहीं है प्रूफ। नहीं, मैंने कहा कि अभी जो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन आई है, इससे ये बात दिखाई देती है कि मेन इशू को डाइवर्ट करने की साजिश करती है। पवार सर, बस सर जैसे आप ब्रीफिंग हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों ने पूछा, जैसे आप ब्रीफिंग कर रहे हैं उसी तरह अनिल देशमुख का ब्रीफिंग है, तो आप जिस आधार पे उनको क्लीन चिट देने की बात करें, आपको नहीं लगता कि कहीं मैंने इतना कहा कि उस समय वो हॉस्पिटल में थे, ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये बात मैंने आपको कही। वीडियो आ गया है कि 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब इस तरह की बात सामने आ रही है, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो क्या आपको नहीं लगता इसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए? मैंने ये कहा था कि भाई सीएम साहब की अथॉरिटी है, सीएम साहब इसमें जो कुछ कर सकते हैं, आवश्यकता उनसे रखते वो कर सकते हैं, और ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ। सर इसी में सवाल है, एनसीपी का क्या स्टैंड है? एनसीपी चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अनिल देशमुख और परमवीर। बात एनसीपी के प्रेसिडेंट के सामने ये कागजात आने के बाद इसमें जो एलिगेशन हो रही है ये क्लियर हो नहीं रही। ऐसे परिस्थिति में खाली किसी ने तो एलिगेशन किए। अच्छा, एलिगेशन किसने किए? जिसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाए गए थे और इससे नाराज़गी हो रही थी, ऐसे लोगों ने एलिगेशन किए थे। इस बारे में जो कुछ गवर्नमेंट को करना, अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी, दे गॉट एवरी राइट to whether they want to inquire their officer, their minister, or their any other colleague. We have no objection. We will not come in that section. देशमुख प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे तुमची काही फोन आता संवाद झालेला आहे का सर? नाही, मी कालच सांगितलं. I had a talk with him. Just beyond that nothing. सर कालच्या बैठकीत काय झालं? काल अजित पवार, जयंत पाटील या ठिकाणी आले होते, संजय राऊतही तुम्हाला भेटले, प्रफुल्ल पटेलही भेटले. काय नेमकं झालं होतं कालच्या बैठकीत? नेमकी कुठल्या विषयावर चर्चा झाली? कालच्या बैठकीत पंढरपूरला कोण उमेदवार उभा करायचा याची चर्चा झाली. आज तिथं बसून तो कॅन्डिडेट, तिथं बाय इलेक्शन आहे, त्या बाय इलेक्शनच्या संबंधीची पुढची पावलं टाकली. काही
कॅम्पेनच्या दृष्टीने आणखीन काही करायची आवश्यकता आहे त्या गोष्टीची चर्चा केली. सर एक और जानकारी अपडेट सर राज्यात आपल्याबद्दल काय मत आहे याचा आढावा प्रदेशाध्यक्षांकडनं घेतला नाही का कालच्या बैठकीत या प्रकरणाचा? नाही, मला काय फारसं त्याच्यात आवश्यकता वाटते. सर एक और जानकारी आई है हम लोग के चैनल में अभी परमवीर सिंह को लेकर कल आपने कहा था कि 100 करोड़ के कलेक्शन का जिक्र नहीं है, कल आपने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, लेकिन अभी परमवीर सिंह के हवाले से ही एक जानकारी आ रही है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है, उनका कहना है कि जब पैसे के बारे में पूछा जाएगा तब उसकी जानकारी वो जरूर देंगे 100 करोड़ के बारे में। ठीक है, इनका जो लेटर है उनका खुद का इसमें 100 करोड़ की बात है. जी आपने कहा था कि कलेक्शन का जिक्र नहीं है, उन्होंने कहा है नहीं, एक जगह पर उन्होंने कहा था 50, यानी उन्होंने मीडिया ने और इसमें 100 किया है. मैंने कल अभी देखा ठीक तरह से, तो इसमें 100 का उल्लेख है. चलिए, थैंक यू. थैंक यू.